Myself, Mahendra Yadav. हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे सुरक्षित होंगे और आगे भी सुरक्षित रहेंगे by following the guidelines of the government. Okay, so today I am here to start with subject statistics. So let's start. Okay, so first thing we are going to see board paper style. Subject code of statistics is 135. There will be total 6 sections. Section A, multiple choice questions will be there. 1 mark question and total 10 questions will be there. Section B, answer the questions in one sentence. 1 mark question, 10 questions will be there. So total 10 marks. So you can observe 10 plus 10 in section A and section B. Mostly theory part comes. So total 20% weightage of theory is there. So don't ignore theory part. Now section C, answer the questions as directed. 2 marks question will be there. 10 questions will be there, 20 marks. Section D, 3 marks question will be there. 8 questions will be there, 24 marks. Section E, 4 marks question will be there and 4 questions will be there. So total 16 marks. Section F, last section, 5 marks question will be there and 4 questions will be there. So this is your paper pattern of this subject. Now let's understand blueprint of statistics. Okay, so total 2 part of textbooks are there, part 1 and part 2. Part 1 4 chapters will be there and in part 2 5 chapters will be there. Okay, as just now I've discussed, sections, total 6 sections will be there starting from A and ending till F. Now let's start with the first chapter of first part, that is index number. Section A, 1 question will be there. Section B, 1 question will be there. And in section C, again 1 question is there. Section D, 3 marks question, so 1 question is there. Section F, 5 marks question will be there and 1 question is there. So you can observe total 5 questions are asked from this chapter in different sections. Section E, no question is asked. Total weightage of the first chapter is 12 marks. Now the remaining blueprint of second, third and fourth chapter is same as of the first chapter. And total weightage is also same, 12 marks. Okay. And you can observe here in section F, 5 marks question are basically asked from this first part 4 chapters only. So put your effort. Those students who are weak, they have to work hard on this first part because comparatively first part, second part is more tough. So work hard on the first part first. Now come to the part 2. Part 2, first chapter will be probability. In section A, 1 question will be there. Section B, 1 question. Section C, no questions will be there. Section D, 2 questions will be there. Section E, 1 question and its weightage is also 12 marks. Accordingly, you can understand the remaining chapters. Lesson number 2, part 2, random variable and discrete probability distribution. Third chapter will be normal distribution. Fourth, limit. And fifth, differentiation. As I have said earlier, section A 10 marks, section B total 10 marks, section C 20 marks, section D 24 marks, section E 16 marks and section F 20 marks. Okay. Okay, now let's start the second chapter today. As you can see here, our first topic will be definition of linear correlation. Okay, so let's discuss definition of correlation. If there are simultaneous changes in the values of two variables due to direct or indirect cause effect, then it is said that there is correlation between two variables. You will not understand in this way. Let's take example. Okay, so I am taking example. Suppose one variable I am taking rainfall and second variable I am taking yield of rice.
अब जो रेनफॉल वेरिएबल है मैं उसे डिनोट करता हूँ एक्स से, और जो यील्ड ऑफ राइज है उसे डिनोट करते हैं वाई से। अगर रेनफॉल इंक्रीज होता है, इफ देर इज इंक्रीज इन रेनफॉल, देर विल बी इंक्रीज in the yield of rice also, and if rainfall decreases, there will be decrease in yield of rice also. Okay. Now because of rainfall there will be effect on the yield of rice, तो rainfall क्या हो गया, cause वेरिएबल हो गया, और yield of rice क्या हो गया, effect वेरिएबल हो गया, क्योंकि rainfall की वजह से yield of rice के ऊपर असर पड़ रहा है। That's why rainfall is cause variable and yield of rice is effect variable. तो यहाँ पे cause and effect relationship exist हो रही है, और अगर x वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से y वेरिएबल में चेंज होगा। तो x वेरिएबल जब चेंज होगा तुरंत y वेरिएबल में चेंज हो रहा है, देयर विल बी साइमल्टेनियस चेंज इन द वेरिएबल y. So you can understand there is cause and effect relationship, first point. And due to change in one variable there will be change in the other variable. So we can say that there exists correlation between given variable x and given variable y. So now definition will be clear. If there are simultaneous changes, मतलब एक के बाद में दूसरे में चेंज हो रहा है, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया, वेरिएबल x में चेंज हो रहा है, दैट वाज रेनफॉल, तो वेरिएबल y में भी चेंज होगा, दैट इज यील्ड ऑफ राइस of two variables due to direct or indirect cause effect. तो जो मैंने बताया cause effect relationship की वजह से अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होगा। अगर इस तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश होता है देन इट कैन बी सेड दैट देयर इज कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. होप you have understood the definition. Now let's come to the next topic. Okay, mainly there are two types of correlation. Correlation दो types के होते हैं, one is positive and second is negative correlation. Now let's discuss the positive correlation. When the changes in the values of two correlated variables are in the same direction, अगर change same direction में होता है तो ये कह सकते हैं कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. For understanding this, we will take the same example. As I have discussed now, rainfall is one variable, yield of rice is second variable. अगर rainfall में increase हो रहा है तो yield of rice में भी increase होगा, और अगर rainfall decrease हो रहा है तो yield of rice भी decrease होगा. So you can observe जो चेंज हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है. अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंक्रीज़ होगा, और अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो वेरिएबल y भी डिक्रीज़ होगा. सो हियर बिकॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देयर इज चेंज एंड द चेंज इज इन द सेम डायरेक्शन. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड, सेम डायरेक्शन. तो जो चेंज होगा वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है. नाउ कम टू द सेकेंड, that is negative correlation. Negative correlation states that when the changes in the values of two correlated variables are in the opposite direction में अगर changes हो रहे हैं तो उनके बीच में negative correlation exist कर रहा है. For understanding this, let me take one example. Suppose I am taking one variable expenditure and denoting it by x, and second variable savings of person denoting it by y. Now if expenditure increases, अगर expenditure increase हो रहा है मतलब खर्चा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर खर्चा बढ़ रहा है तो सेविंग्स क्या होगी, बचत क्या होगी, बचत कम हो जाएगी. यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ सेकेंड, अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है मतलब खर्चे अगर कम हो रहे हैं, किसी भी इंसान के अगर खर्चे कम होते हैं तो उसकी बचत बढ़ती है. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर.
तो अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो सेविंग्स क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, इफ़ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस मतलब एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन. और अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है. अगेन चेंज इज़ देयर बट इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो दो वेरिएबल्स हैं, एक है एक्सपेंडिचर, दूसरा है सेविंग्स. अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है मतलब चेंज जो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. और अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है. सो दैट इज़ गिवन इन द डेफिनेशन that changes are there but it is in the opposite direction. So hope you have understood the definition of negative correlation clearly. Now come to the next topic. Our next topic is coefficient of correlation. तो हमने अभी कोरिलेशन डिस्कस किया. कोरिलेशन क्या बताता है कि एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो उनके बीच में अगर कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होगा. तो ये कह सकते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट होता है. लेकिन वो कोरिलेशन कितने हद तक है, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन. इन शॉर्ट, मैथमेटिकल वैल्यू कोरिलेशन है तो कोरिलेशन की अगर एक मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में अगर कोई मेज़र है तो वो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या हो गया, इट इज़ वन मेज़र. और वो क्या डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो कितने हद तक एक मैथमेटिकल वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड. अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है. इट इज़ गिवन हियर, दिस मेजर वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन. तो इससे पहली बार जिसने सजेस्ट किया था उस पर्सन का नाम है कार्ल पियर्सन. तो ये भी आपको लर्न करना है, इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic is methods of studying correlation. So there are basically three methods of studying correlation. One is scatter diagram method, and second is Carl Pearson's product moment method, and third is Spearman's rank correlation method. Okay, in scatter diagram method, the important theory part, तो जो भी important theory part है उसमें से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का जो मीनिंग दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन दिस वे. इफ़ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर डायग्राम, अगर स्कैटर डायग्राम के सभी पॉइंट्स लाई ऑन वन लाइन एंड इफ़ द लाइन इज़ गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then it shows perfect positive correlation between two variables x and y. So you can observe from the diagram, अगर हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं, प्रीवियसली आई हैव एक्सप्लेन व्हाट आर द वेरिएबल्स. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, वेरिएबल x रेनफॉल, वेरिएबल y यील्ड ऑफ राइस, और दूसरा एग्जांपल लिया था जिसमें एक्सपेंडिचर वेरिएबल x एंड सेविंग्स वेरिएबल y. तो इस तरह से अगर हमारे पास में कोई भी दो कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं तो x एक्सिस पे वेरिएबल x आएगा और y एक्सिस पे वेरिएबल y की वैल्यूज़ आएंगी बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट स्केल्स. स्केल्स लेने के बाद में पॉइंट्स को यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस पे रखने के बाद में पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे मिल रहे हैं, x एक्सिस की वैल्यू y एक्सिस की वैल्यू जहाँ पे मिल रही है पहली वैल्यू पॉइंट्स प्लॉट कर दिया, सेकेंड वैल्यू जहाँ पे मिल रही है, इस तरह से पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. अगर पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद में अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेट लाइन में आ रही है, और ये स्ट्रेट लाइन कैसी होनी चाहिए, हमारे लेफ़्ट हैंड साइड से, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड के लोअर पार्ट से स्टार्ट हो रही है और वो मूव कर रही है टूवर्ड्स राइट हैंड साइड अपवर्ड पार्ट, यानी राइट हैंड में अपवर्ड पार्ट, अपवर्ड साइड में.
अपवर्ड साइड पे मूव कर रही है। तो अगर इस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे स्कैटर डायग्राम में, then it can be said that there is perfect positive correlation between the given two variables. So now it will be more clear. Let's revise. If all the points of scatter diagram, अगर स्कैटर डायग्राम के सभी पॉइंट्स, स्कैटर डायग्राम के सभी पॉइंट्स, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं स्कैटर डायग्राम के, लाई ऑन वन लाइन, तो एक लाइन पे आ रही है, ये लाइन हमें दिख सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आ रही है, और ये लाइन कैसी है, इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट, तो ये यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करती जा रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट साइड टू द राइट, तो ये राइट साइड में मूव कर रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर राइट साइड में मूव कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट एंड मूविंग टूवर्ड्स राइट। Then it shows perfect positive correlation between two variables x and y. Now let's come to the next theory part. Next theory part is perfect negative correlation. Perfect negative correlation. What is perfect negative correlation? If all the points of a scatter diagram lie on one line, एक लाइन में अगर स्कैटर डायग्राम के पॉइंट्स आ रहे हैं, गोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, एक्स वेरिएबल की वैल्यू, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे वाई वेरिएबल की वैल्यूज़ को लेंगे। अब अगर पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद में पॉइंट्स कुछ इस तरह से आ रही हैं, एक लाइन में ही पॉइंट्स आ रही हैं, जैसे ये रहा, एक लाइन में ही पॉइंट्स आ रही हैं, और वो लाइन कैसी है, वो लाइन ऐसी है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट अपवर्ड साइड, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और इसके अपवर्ड साइड से स्टार्ट हो रही है एंड मूविंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड पे मूव हो रही है, डाउनवर्ड साइड पे, then it shows perfect negative correlation between two variables x and y. So we have discussed 2 points, perfect positive correlation and perfect negative correlation. perfect positive correlation में क्या होता है, लाइन जो है वो इस तरह से मूव करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड मूविंग टूवर्ड्स अपवर्ड राइट हैंड साइड। और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, जो पॉइंट्स होती हैं वो डाउनवर्ड साइड में होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट अपवर्ड साइड एंड मूविंग टूवर्ड्स राइट डाउनवर्ड साइड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic will be partial positive correlation. Partial positive correlation. If all the points of scatter diagram are not on one line, अगर हमारे स्कैटर डायग्राम के जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में नहीं है, यू कैन ऑब्जर्व एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, विच इज़ गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक लाइन में नहीं जा रहे हैं, यू कैन ऑब्जर्व। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए लाइन ड्रॉ करूँ तो एक लाइन में नहीं है, वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होके राइट हैंड साइड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स लाइन पे हैं और कुछ पॉइंट्स लाइन के आसपास में, लेकिन लाइन पे नहीं है, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट साइड पे, बट नॉट इन वन लाइन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट ऑन वन लाइन, एक लाइन पे नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड अपवर्ड डायरेक्शन में। then it can be said that there is partial positive correlation. partial positive correlation, perfect नहीं है, perfect होता तो एक ही लाइन में आते, और partial है तो लाइन वही रहेगी, लेकिन पॉइंट्स जो हैं स्ट्रेट लाइन पे नहीं रहेंगी, कुछ लाइन पे रहेंगी, कुछ उसके आसपास रहेंगी। Now come to the next topic. Our next topic will be partial
negative correlation if all the points of scatter diagram are not on one line. तो जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन था और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन था, उसके जो स्कैटर डायग्राम के पॉइंट्स थे वो एक लाइन में आ रहे थे. लेकिन पार्शियल जब भी होगा, पार्शियल वर्ड, तो पार्शियल पॉजिटिव हो या पार्शियल नेगेटिव, उसके जो पॉइंट्स हैं नॉट ऑन वन लाइन, एक लाइन पे नहीं होंगे, लेकिन लाइन के आसपास रहेंगे. कुछ पॉइंट्स लाइन पे हो सकते हैं, कुछ उसके आसपास रह सकते हैं, आजू बाजू में रह सकते हैं, विच इज़ गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यू कैन ऑब्जर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन है, कुछ पॉइंट्स लाइन पे आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट. लेफ्ट अपर साइड से स्टार्ट होके राइट डाउनवर्ड साइड में मूव कर रहे हैं. देन इट कैन बी सेड दैट it indicates that there is partial negative correlation between two variables x and y. Now come to the next topic. Next is lack of correlation. Lack of correlation, it indicates that the points are randomly scattered, not in a specific pattern. एक randomly कहीं पर भी scattered होते हैं. जैसे अभी हमने सीखा, अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो जो पॉइंट्स होते हैं वो इस तरह से कुछ लाइन में आते हैं, और अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो पॉइंट्स जो होते हैं वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आते हैं. तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लीनियर डायरेक्शन नहीं है, बल्कि जो पॉइंट्स हैं वो रैंडमली स्कैटर्ड हैं. दे आर स्कैटर्ड रैंडमली विदाउट एनी स्पेसिफिक पैटर्न. सो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज लैक ऑफ कोरिलेशन. Hope you have understood the points. Now let's understand the next topic, that is advantages and limitations, that is merits and limitations of scatter diagram method. Merits means advantages. Advantages का first point है, this is a simple method to know the nature of correlation between two variables. तो ये बहुत ही simple method है, हम ये पता कर सकते हैं कि कोरिलेशन का नेचर क्या है. जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर पॉइंट्स पूरी तरह से इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है. और अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो इस तरह से लाइन बनेगी. और अगर लाइन इस तरह से बन रही है, पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद में पॉइंट्स जो है अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है. तो नेचर क्या है कोरिलेशन का हम पता कर सकते हैं. सिंपल मेथड है, जस्ट बाय प्रिपेयरिंग वन डायग्राम. सेकंड पॉइंट, लेस मैथमेटिकल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड एज द नॉलेज ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स इज़ ओनली द रिक्वायरमेंट इन दिस मेथड. तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, सिर्फ हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है और कुछ ज़्यादा कोई मैथमेटिकल नॉलेज या मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना होता. सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट प्लॉट द पॉइंट्स एंड गेट द information regarding nature of correlation. Third, it also gives some idea about strength of correlation between two variables. तो वो हमें कुछ आइडिया देता है कि स्ट्रेंथ क्या है. इट डज नॉट शोज द वैल्यू, हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा, लेकिन कुछ आइडिया देता है कि स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो हम स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि क्या उसकी स्ट्रेंथ क्या है. एग्जैक्ट वैल्यू हम पता नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ scatter diagram method. Okay, now come to the fourth point. Fourth point, the scatteredness of the points suggests whether the correlation is linear or not. Scatteredness of the points, it means in our scatter diagram method हमारे पॉइंट्स किस तरह से स्कैटर्ड, किस तरह से बिखरे हुए हैं, किस तरह से फैले हुए हैं, उससे हम कोरिलेशन लीनियर है या नहीं वो पता कर सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लीनियर. लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन. तो अगर हमारे पॉइंट्स कुछ इस डायरेक्शन में है, स्ट्रेट लाइन में, तो हम ये बोल सकते हैं कि उनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है. और अगर पॉइंट्स इस डायरेक्शन में है, जैसे कि अभी हमने सीखा
तो ये क्या इंडिकेट करता है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो उनके बीच में लीनियर कोरिलेशन नहीं है। कोरिलेशन है लेकिन स्ट्रेट लाइन में ना होने की वजह से लीनियर कोरिलेशन नहीं है या नहीं वो पता कर सकते हैं। और अगर पॉइंट्स कहीं पर भी प्लॉट हैं रेंडमली, मतलब उनके बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज लैक ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, देयर इज नो डिफिकल्टी इन जजिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन even if some pairs of extreme observations are present in the data। अगर हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं, x वेरिएबल एंड y वेरिएबल, तो x वेरिएबल और y वेरिएबल अगर हमारे पास में है तो x वेरिएबल और y वेरिएबल की वैल्यूज़, कुछ पेयर की वैल्यूज़ अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, मतलब x की वैल्यू एकदम ही छोटी है और y की वैल्यू एकदम बड़ी वैल्यू है, तो एक वैल्यू छोटी और एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू एकदम बड़ी, तो हमारे पास में एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस है, छोटे और बड़े ऑब्जर्वेशंस। लेकिन फिर भी हम उसे स्कैटर डायग्राम की मदद से उनके बीच में नेचर ऑफ कोरिलेशन पता कर सकते हैं, स्ट्रेंथ पता करना मुश्किल है। नाउ कम टू लिमिटेशन। लिमिटेशन, द मेन लिमिटेशन इज we cannot find out the strength of correlation, we can find out the nature of correlation। हम नेचर पता कर सकते हैं बट वी कान फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। स्ट्रेंथ एक मैथमेटिकल वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कोरिलेशन कितना है, सिर्फ नेचर पता कर सकते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है वो सिर्फ पता कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ पता नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? सो बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन, अगर हम एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं तो इसकी वजह से जो सेकेंड मेथड है वो एप्लीकेबल होता है, दैट इज़ मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट। कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, उसकी मदद से हम एक मैथमेटिकल वैल्यू कोरिलेशन की फाइंड आउट कर सकते हैं जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल r से। तो कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।